الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑا مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر یہ ادا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی اس پاکیزہ محفل میں آنے کا بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا ہے، کیونکہ یہ وہ محفل ہے جس محفل میں آنا ہمارے بس کی بات نہیں، بلکہ رب فرماتا ہے جب میں اپنے بندے پر راضی ہوتا ہوں، سبحان اللہ، رب فرماتا ہے میں اپنے بندے پر جب خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہوں. اور بہنوں، آئیے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا ذائقہ ہر زیرو نے چکھنا ہے، خواہ کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، میری ماؤں بہنوں، اس چیز میں اللہ نے روح ڈالی ہے، اس ہر ایک چیز نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہو کر اپنی موت کو ایک دن میں 70 مرتبہ یاد کرتے تھے. جو نبیوں کے امام ہیں، میری ماؤں بہنوں، جس کی خاطر اللہ نے زمین آسمان کو بنایا، دنیا کی کھیل رچائی، وہ امام الانبیاء ہو کر اللہ کے آخری پیارے پیغمبر حبیب ہو کر دنیا میں رہ کر اپنی موت کو اگر 70 مرتبہ یاد کرتے ہیں تو پھر ہمارے جیسے گناہگاروں کو کتنی بار یاد کرنا چاہیے. لیکن ہم تو بھول کر بھی یاد نہیں کرتے نا. لیکن ہاں، یہاں سے تو مٹ گئے وہ اہل شاہ کیسے کیسے، ارے زمین کھا گئی وہ نوجوان کیسے کیسے. یہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، میری بادشاہ نہیں ہے. تو آئیے، آدمی کیا چیز ہے، یہ آدمی بھی کیا چیز ہے جس پہ شیدا کل جہاں، ایک مٹی کی عمارت اور ایک مٹی کا ہے مکان، اور خون جس میں گارا ہے، اینٹ جس کی ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں. موت کی پرزور آندھی جس روز بھی آ جائے گی، یہ مٹی کی عمارت گر کر خاک میں مل جائے گی. تو ماں اور بہنوں، اس لیے میرے رسول اللہ نے فرمایا ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتے رہنا، کیونکہ موت کی اس قدر تکلیف، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف کا عالم یہ ہے، ایک انسان کو کھڑا کیا جائے، پھر اس انسان کے جسم پر تلوار سے 300 بار ضرب لگائی جائے. تو موت کی تکلیف کا عالم یہ ہے. ایک مثال پیش فرمائی حضور نے فرمایا، ایک کریب کے دوپٹے کو، مخمل کے دوپٹے کو بیر کے درخت کے اوپر ڈال دیا جائے، پھر دوپٹے کو زور سے واپس کھینچو گے، اس کی کیسی حالت ہوگی. اسی طرح انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، تب انسان کے جسم کی بھی ایسی حالت ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. ماں اور بہنوں، اس موت کو ہم بھول کر بھی یاد نہیں کرتے. جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانیوں، اگر انسان نے رب کو راضی کیا ہوتا ہے دنیا میں رہ کر، تو مرنے والے شخص کے سامنے ایسے فرشتے نظر آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ کی نگاہ جہاں جاتی ہے ادھر ہی وہ فرشتے نظر آتے ہیں.
یہاں تک کہ جب تک اس کی روح قبض ہو جاتی ہے وہ فرشتے تب تک میری ماں اور بہنوں رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، یہاں تک اس کی اب روح نکل چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس جب نیک بندے کی جب روح پرواز کر جاتی ہے تو آواز آتی ہے یہ کس کی روح ہے؟ تو جب فرشتے پوچھتے ہیں تو آواز جواب کیا آتا ہے کہ یہ اس کی روح ہم لے کے آئے ہیں، فلاں بن فلاں جو نیک بندہ رب کو منایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، میرا رب فرمائے گا اب اس روح کو وہ انعام دکھاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو وہ انعام دکھاؤ، اس کو وہ انعام دکھاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، یہاں تک کہ اس کو وہ انعام اس کے دکھائے جاتے ہیں۔ پھر اس کا جیسے ہی لوگ جنازہ پڑھاتے ہیں، ماں اور بہنوں میت کو لے کر کے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، لوگ آنے والے واپس آ جاتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے میری ماں اور بہنوں اس کو زندہ کیا جاتا ہے۔ منکر نکیر سوال کرتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا۔ اگر ان سوالوں کی تیاری ہوگی نا تو وہاں سوالوں میں اللہ کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ اگر دنیا میں رہ کر سوالوں کی تیاری نہیں کی ہوگی تو وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ ماں اور بہنوں، یہاں تک کہ اگر وہ انسان نیک ہوتا ہے میرا رب فرماتا ہے یہاں اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جائے۔ سبحان اللہ، اگر وہاں عذاب آنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو نورانی شکل میں نماز آ کر بچا لیتی ہے۔ اگر نمازیں پڑھی ہوں گی تو وہاں بچائے گی نا۔ پاؤں والی سائیڈ سے جب عذاب آنے کی کوشش کرے گا تو نماز نورانی شکل میں آ کر کیا کہے گی؟ کہے گی اے عذاب تو اس کے نزدیک نہیں آ سکتا، کیونکہ اس نے ان ٹانگوں پر خوب کھڑے ہو کر رب کو منایا تھا۔ سبحان اللہ، اس تجھے آنے کا حق میں نہیں دیتی، پھر عذاب لوٹ کر کے سر کی طرف سے آنے لگے گا، روزہ نورانی شکل میں آ کر کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اس نے گرمی کی شدت بھوک پیاس برداشت کی ہے، اس نے دنیا میں رہ کر رب کو منایا ہے، آج اس کی میں خود حفاظت فرما رہا ہوں۔ یہاں تک کہ اگر عذاب سائیڈ سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو ماں بہنوں وہاں آ کر یہ جہاد عمرہ حج بچا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر عذاب اوپر سے آنے کی کوشش کرتا ہے وہاں صدقہ خیرات بچا لیتا ہے۔ جو اپنی نیک کمائی سے رب کے راہ پر دیا ہوگا، اللہ کے نام پر خرچ کیا ہوگا، وہاں آ کر بچا لے گا، یہاں تک کہ اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ نبی شاہ اپنی موت کو یاد رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں یہ دنیا صرف کھیل تماشا ہے جس کو ہم دل لگائے بیٹھے ہیں، جس دنیا کو ہمیشہ کے لیے ہم سمجھ کے بیٹھے ہیں یہ دنیا صرف کھیل اور تماشا ہے، پھر مٹ جائے گی یہ جوانی، ارے جس پہ ہم کو ناز ہے، مٹ جائے گی پھر یہ جوانی جس پہ ہم کو ناز ہے، جتنا بھی بجانا ہے بجا لے بس یہ 4 دن کا ساز ہے، کیونکہ یہاں سے مٹ گئے وہ اہل شاہ کیسے کیسے، وہ زمین کھا گئی ہے نوجواں کیسے کیسے، یہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جس موت کو بھولے بیٹھی ہو، موت کیا اعلان کرتی ہے، وہ موت کیا کہہ رہی ہے؟ مان والوں میں ایک ایسی موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے اندر جدائی ڈال کے رکھ دیتی ہوں، پھر موت اعلان کرتی ہے ایمان والوں میں تو ایک ایسی موت ہوں جو میاں بیوی کے اندر جدائی ڈال کے رکھ دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ آسمان پر جوڑے بنانے والا بھی تو خدا ہے، اللہ زمین پر جدا کرنے والا بھی تو خدا ہے۔ پھر موت اعلان کرتی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، دنیا میں مضبوط عالیشان گھر بھی بناؤ گے نا لیکن یہ موت سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا، اتنا بھی آسائش و آرام زندگی میں لے آؤ موت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے جب یہ سارا واقعہ سنا نا، اس نے ایک نجومی کو ہاتھ دکھایا کہ دیکھو میری زندگی کب تک ہے، میری موت تو نہیں آئے گی۔ اس نجومی نے ہاتھ دیکھا، اس نے اپنے علم کے مطابق بتایا کہ ہاں تیری موت نزدیک ہے اور تجھے ایک بچھو ڈنک مارے گا، ایک بچھو کے ڈنک سے تیری موت ہو جائے گی۔ اب اس بادشاہ نے اپنے محل کے اندر ایک ایسا کمرہ بنوایا جس میں سوئی کے برابر بھی سوراخ نہیں رکھا کہ کہیں سے بچھو اندر داخل نہ ہو پائے۔ اب اس بادشاہ نے وہ کمرہ ہر طرف سے بند کروا کے کمرے
कमरे के अंदर बैठ गया है। सुबह से शाम हो गई, माओ बहनों मौत से डर के छुपा बैठा है कि यहाँ मुझे मौत नहीं आ सकती। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, उस बादशाह की एक कमजोरी थी, वो घोड़े से बड़ा प्यार करता था। उसने शाम को अपना घोड़ा मंगवाया, देखने के लिए कमरे से जूं बाहर निकला, जैसे ही उसके घोड़े को छींक आई, उसके छींक के जरिए माओ बहनों बिच्छू पैदा हुआ, उस जमीन पर गिरा। वहां से फौरन बादशाह को उस बिच्छू ने काटा तो उसकी मौत हो गई। पता चला ये दुनिया की आसाइशो आराम ले आओ जिंदगी में। माओ बहनों, जब मौत आएगी ना, कोई चीज सहारा नहीं बनेगी। आज हम गर्मी से बचने के लिए यहाँ दुनिया में तो माओ बहनों कूलर का, एसी का इंतजाम कर रही हैं, लेकिन कभी सोचा है वहाँ कब्र में हमारे साथ क्या होगा? यहाँ हम नरम नाजुक बिस्तर पे सोने वालियाँ, कभी ये सोचा है वहाँ कब्र के अंदर कैसे करवट बदलने की जगह भी नहीं, वहाँ कैसे लेटेंगे, वहाँ की क्या तैयारी की, नहीं, कभी नहीं सोचा ना। लेकिन माओ बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाजिया फरमा दिया है, ये सिर्फ खेल तमाशा है। अगर हमें कोई दुनिया में आकर बोले, कोई आकर कहे कि वहाँ गड़ा मोही जाना, वहाँ जेब काटने वाले कोई खतरा है जान का, तो हम वहाँ से नहीं गुजरेंगे, अपने आप को महफूज करेंगे। तो बनाने वाले ने दुनिया बनाकर फरमा दिया, इसके धोखे में नहीं आना, इससे अपने आप को महफूज करना है। अगर दुनिया के फ्रेब में आ गए तो दुनिया के होके रह जाओगे। ये दुनिया तो सिर्फ खत्म होने वाली है, ये खत्म होने का नाम है। आओ माओ बहनों, इस मौत को हम भूले बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानियों, अगर रब को राजी करके जाओगे तो दुनिया आखिरत दोनों ही इंशाअल्लाह संवर जाएगी। क्योंकि फिरौन की एक नौकरानी थी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। खबर फैलती फैलती फिरौन के पास खबर आ गई कि आपकी नुकरानी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब फिरौन ने क्या कहा, उसने उस नुकरानी को बुलाया, उसकी 2 मासूम बच्चियां थी, उनको बुलाया, कहने लगा कि ये तेल का कढ़ाया मैंने गर्म किया हुआ है, तेल का कढ़ाया उबल रहा है, बता तू जान देगी या अपना ईमान देगी? उसने कहा, उस औरत ने कहा कि ए फिरौन, मेरी जान, मेरी बच्चियों की जान तेरे हवाले, ईमान रब के हवाले है। जरा ऐसी मजबूत ईमान वाली खातून है, रब के नाम पर अपनी औलाद भी कुर्बान कर रही है। सुभान अल्लाह। उस औरत ने कहा, मेरी बच्चियां ये सिर्फ 2 हैं, अगर मेरी 1000 भी बच्चियां होती तो मैं रब के नाम पर कुर्बान कर देती। इस कदर मोहब्बत करने वाली मजबूत ईमान वाली उस बीबी ने कहा, मेरी जान तू निकाल सकता है, मेरा ईमान नहीं निकाल सकता है। अब फिरौन ने जलते हुए उबलते हुए तेल में उसकी बड़ी बच्ची को पकड़ा, तेल में डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह। औरत कहती, सोचती कि थोड़ी देर में इसके सामने अपना ईमान से बदल जाऊं, घर जाकर तौबा करूंगी। नहीं नहीं, अब उस औरत के सामने से जब उसने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह ने उसके सामने से पर्दे हटा दिए, उस बच्ची की रूह निकली। उसकी बेटी कहती है, माँ परेशान नहीं होना, वो जन्नत में देख महल नजर आ रहे हैं। जैसे ही फिरौन ने उसकी बच्ची को तेल में जलाया, वो जलकर कोयला बन गई। अस्तगफिरुल्लाह। जैसे ही उसकी दूसरी बच्ची को पकड़ने लगा तो मेरी माओ बहनों, मासूम सी बच्ची को पकड़कर उसने भी तेल में डाल दिया, उसकी रूह निकलने लगी। अल्लाह ने पर्दा हटा दिया। वो लड़की कहती है, मम्मा घबराना नहीं, मेरी माँ वो देख जन्नत में इकट्ठे हम हत्ता के इकट्ठे ही महल में रहेंगे। जैसे ही उस बच्ची की रूह निकलती हुई देखी, आवाज सुनी, तो वो औरत कहती है, मेरी बच्चियों की जान तो चली गई है, ए फिरौन अब एक छोटी सी मेरी बात जरूर मान लेना, भले मुझे भी इस तेल में जलाकर राख बना दे, लेकिन हाँ मेरी छोटी सी एक गुजारिश ये है, जैसे हमारी हड्डियां जमा हो जाएं, हमारी जो हड्डियां होगी उन्हें ऐसे ना फेंकना, ये छोटी सी गुजारिश है कि वहां किसी मट्टी में कहीं जाकर दफन कर देना। अब फिरौन ने कहा ठीक है। अब जैसे ही फिरौन ने उस औरत को पकड़ा, तेल में जला दिया, मेरी माँ बहनों उसकी भी रूह परवाज हो गई। लेकिन याद रखना, फिरौन ने उसकी हड्डियों को जमा करके उसके कहने पर जाकर के एक मट्टी में दफन कर दिया। जब 2000 साल का अरसा खत्म हो जाता है, जब मोहम्मद
मुस्तफ़ा दुनिया में आते हैं, सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह के हबीब आते हैं। जब हुजूर अर्श की सैर पर जा रहे थे, 2000 साल का अरसा खत्म हो गया। आज सरकार मेरी माओ बहनों उस जगह से गुजरने लगे तो 2000 साल के बाद भी उस औरत की कब्र से खुशबू आ रही थी, खुशबू आ रही थी। वो हुजूर फरमाते हैं जिब्राइल यहाँ तो जन्नत की खुशबू आ रही है, ये किसकी कब्र है? तो आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये उस औरत की कब्र है जिसने रब के नाम पर अपनी 2 बच्चियां और अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। सुबहान अल्लाह। आइए माँ और बहनों, ये दुनिया क्या चीज है। आओ यहाँ दुनिया में जो सब्र करके गया, हर परेशानी मुश्किल में रब की रजा में सब्र करके गया, ये दुनिया तो खत्म होने का नाम है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जैसे ही एक इंसान आता है, इंसान ने कहा कि हमने सुना है जब बंदा मर जाता है तो क्या आपका रब फिर जिंदा करेगा? जब बंदा मर जाता है क्या उसको फिर जिंदा किया जाएगा? अब उस इंसान के हाथ में बहुत पुरानी हड्डी थी, इंसान के जिस्म की पुरानी सी हड्डी लेके आया, हाथों में मसला, हड्डी सुरमे की तरह बन गई, मट्टी की तरह बन गई, उसको फूंक मारी, हवा में उड़ा दिया। अब वो इंसान कहता है अल्लाह के नबी, ये तो सुरमा बनकर हवा में हड्डी उड़ गई है, इसको क्या दोबारा जिंदा रब कैसे करेगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगाम भेजा। सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल जिब्राइल, अर्ज करता है लब्बैक अल्लाहुम्मा, पालने वाले में हाजिर हूँ, अल्लाह हुक्म फरमाओ। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्राइल जाओ मेरे मोहम्मद मुस्तफा को पैगाम दे आओ, जाओ मेरे हबीब को पैगाम दे आओ, जो ये शख्स दलीलें मांगने आया हुआ है। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, फरमाया अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। रब फरमाया कि ये दलीलें मांग रहा है कि रब कैसे जिंदा करेगा, इसको ये पता नहीं कि हमने इसको एक गंदे नुतफे से पैदा किया था। अब ये झगड़े करते हैं, अब ये दलीलें मांगते हैं कि रब कैसे जिंदा करेगा, रब कैसे जिंदा करेगा। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, जिसने इंसान को एक नुतफे से पैदा किया तो वो जिंदा भी कर दिखाएगा। माँ और बहनों, जिधर मर्जी जाओ, लेकिन वो दिन करीब है जिसके बारे में रब ने क्या फरमाया, वो दिन 50,000 साल के बराबर वो दिन जरूर आएगा, जिसको हम सोचते कभी हत्ता कि सोचा ही नहीं, बस सुन लिया, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ने वाज़िया फरमाया इज़ा वक़अतिल वाक़िया, ये जरूर होनी, सली वक़अतिहा काज़िबा, इसे रोक कोई नहीं सकता। खाफियतुर राफिया, कुछ ऊंचे होंगे कुछ नीचे होंगे। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, जमीन में जिलजिले होंगे। उस बुस्सतिल जिबालु बस्सा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। एक दिन वो आने वाला है जिसको हम भूले बैठे हैं, वो 50,000 साल के दिन। मेरी माँ बहन उलमा कराम लिखते हैं पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। कभी सोचा है कभी वो दिन भी आने वाला, कभी उस दिन के बारे नहीं सोचा ना। लेकिन उस दिन उलमा कराम लिखते हैं पहाड़ ऐसे उड़ेंगे जैसे पतंग उड़ रहे होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन आओ अल्लाह का कुरान फरमाता है इज़ा शम्सु कुफिरत, ये सूरज आएंगे, व इज़न नुजुमुन क़दरत, ये सितारे, इज़ल जिबालु सुइरत, ये पहाड़ भी खत्म हो जाएंगे। व इज़ल इशारु उतिलत, ये जानवर भी खत्म। व इज़ल बिहार सुजिलत, ये समुद्रों में आग लगा दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। मेरा रब कहता है हर एक चीज मिट जाएगी, कोई चीज बाकी ना रहेगी। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। हर चीज को फना है, हर चीज फना होगी। सितारे आपस में टकर जाएंगे, सूरज चांद टकरा दिए जाएंगे, आसमान को जमीन से मिला दिया जाएगा, पहाड़ों को पतंगे बनाकर उड़ा दिया जाएगा, रेजा रेजा कर दिया जाएगा, समुद्रों में आग लगा दी जाएगी। कोई चीज उस दिन बचने वाली नहीं है। यहाँ तक के
जैसे हजरत इसराफील ने सूर फूंका, उसके हाथ में आज भी वो मौजूद है, वो एक बाजे की तरह है। उलमा कराम लिखते हैं कि वो अपने मुंह के करीब लेके खड़ा है, वो रब का मुकर्रब फरिश्ता अपने मुंह के साथ लगा के खड़ा है। कब अल्लाह का हुक्म आए में जैसे उसने सूर फूंका, ऐसी एक आवाज आएगी कि पूरी दुनिया के लोग पहले बेहोश हो जाएंगे, फिर आवाज जैसे जैसे तेज होगी दुनिया के लोग मर जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर मेरी माओ बहनों, चार मुकर्रब फरिश्ते जो अर्श के पायों के पास खड़े होंगे, अर्श को पकड़ कर खड़े होंगे। मेरा रब फरमाएगा तुम भी मर जाओ, फिर वो फरिश्ते कहता कि वो भी मर जाएंगे। फिर हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल, अल्लाह फरमाएगा आप भी मर जाओ। अर्श बोलेगा ऐ अल्लाह, जिब्राइल को मौत आएगी जो नबियों के, जो आपके पैगाम नबियों तक पहुंचाता रहा है, जिब्राइल को तो बचा ले। और फरमाएगा नहीं, आज मेरे अर्श के नीचे सबको मौत आनी है, आज सबको मौत आनी है, यहाँ तक कि मेरी माओ बहनों हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल भी मर जाएंगे। फिर याद रखना हजरत इसराफील जिसके हाथ में वो सूर होगा वो भी मर जाएंगे। फिर बारी आएगी हजरत इजराइल की, पता चला मौत को भी मौत आ जाएगी। वहां उलमा कराम लिखते हैं कि इजराइल ऐसे कांप रहे होंगे, मेरा रब फरमाएगा इजराइल तू भी मर जा, तो हजरत इजराइल भी वही मेरी माओ बहनों मर जाएंगे। पता चला कोई चीज भी उस दिन जिंदा नहीं बचेगी, हर एक चीज खत्म हो जाएगी। फिर मेरा रब पहला झटका रब क्या फरमाएगा, अनल मलिक, मैं बादशाह हूँ। दूसरा झटका देगा, फरमाएगा अनल कुद्दूस सलामुल मुमिन, मैं हूँ कुद्दूस सलाम और मुमिन। फिर तीसरा झटका देगा, रब फरमाएगा अनल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। फिर फरमाएगा ऐनल मलूक, बादशाह कहाँ है, जुल्म करने वाले आज कहाँ हैं, अपने आप को रब खुदा का दावा कहलाने वाले आज कहाँ हैं, वो तकब्बुर करने वाले आज कहाँ हैं। यहाँ अर्श के नीचे हर एक चीज को मौत है। लेकिन मेरी माओ बहनों, मेरा रब फरमाएगा आज अकेले अल्लाह की बादशाही है, आज अकेले अल्लाह की बादशाही है। माओ और बहनों, जिस रब की हम हत्ता जिस अल्लाह को भूले बैठे हो, उस रब की कुदरत तो देखो जो हर इंसान की हर एक के अंगूठे का निशान भी अलग बनाने पे कादिर है। सुभान अल्लाह। कोई दुनिया के साइंसदान जमा हो जाएं, डॉक्टर आ जाएं, कोई मिलकर एक अंगूठे का निशान नहीं बना सकता। उस रब की शान पर कुर्बान हो जाओ जो पूरी दुनिया के लोगों का एक एक इंसान, एक एक फर्द का अंगूठे का निशान भी अलग बनाया हुआ है। सुभान अल्लाह। मेरा रब फरमाएगा आज सिर्फ अल्लाह की बादशाही है, आज सिर्फ रब की बादशाही है। तो फिर एक एक को गिन के अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा। जो लोग सोचते थे ना मदर भी तेरा रब दोबारा जिंदा कैसे करेगा, मेरा रब फरमाता है फिर मैं एक एक को गिन के दोबारा जिंदा करूंगा। याद रखना हर एक को नंगा उठाया जाएगा, जिस्म पर कुछ नहीं, सर पर कुछ नहीं, पाँव पे जूते नहीं, हर एक इंसान को उस दिन नंगा उठाया जाएगा। लेकिन जैसे ही कब्रों से कब्रें मेरी माँ और बहनों फटेंगी, एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे निकल रहे होंगे। हम तो इस दुनिया में ऐसे मगन हुए बैठे हैं, लेकिन उस दिन याद आएगा कुछ लोग निकलेंगे कब्रों से, उनके चेहरे इतने स्याह होंगे, उलमा कराम लिखते हैं जैसे कि रात की स्याही कम होगी, उनके चेहरे इतने स्याह होंगे। फिर वो कहेंगे हाय हमें किसने उठा दिया, हमें किसने उठा दिया। अरे ये तो वाकया वो दिन है जिसके बारे हम सुना करते थे, हम अमल नहीं करते थे। अरे वाकया ये तो वो दिन आ गया है, काश हम मरे ही रहते, आज हमें मौत आ जाए। लेकिन याद रखना माओ बहनों, उस दिन कोई भी उज़र हमारा कबूल फिर नहीं किया जाएगा। यहाँ तक के फिर जो नेक बंदे कब्रों से वो भी निकल रहे होंगे, वो कहेंगे, वो क्या कहेंगे, कहेंगे कि आप लोग गाफिल रहे, हमने कहा था तैयारी करो लेकिन आप गाफिल रहे। आज देखो वही दिन आ गया है जिसका रब ने वादा किया हुआ था, जिसका रब ने
वादा किया था ये वही दिन है, आप गाफिल रहे, हम तैयारी करते रहे, तो आज उनके चेहरे रोशन चमक रहे होंगे। सुभान अल्लाह। जिन्होंने रब की पहचान की होगी, रब को मनाया होगा दुनिया में, अपनी मौत को कसरत से याद किया होगा, उस दिन उनको कोई परेशानी नहीं होगी। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर माँ और बहनों याद रखना, फिर जन्नत आएगी, जहन्नम पुलसरात, हर एक को उसके अमल का बदला दे दिया जाएगा। जैसा दुनिया में किया होगा वैसा ही उनके साथ मामला पेश आएगा। लेकिन एक शख्स को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में लेके जा रहे होंगे, अस्तगफिरुल्लाह। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आएंगे, फरमाएंगे अहमद देखो तुम्हारे उम्मती को फरिश्ते जहन्नम में लेके जा रहे हैं। अब मेरे हुजूर आएंगे, फरमाएंगे फरिश्तों क्या वजह है, मेरा उम्मती घसीट कर जहन्नुम में क्यों लेके जा रहे हो? वो फरिश्ते फरमाएंगे ए अल्लाह के रसूल, क्योंकि इसके आज गुनाह ज्यादा हो गए हैं। आज हम मामूल नहीं समझते, अरे ये इसका क्या गुनाह है। नहीं मेरी बहन, याद रखना, फिर उस दिन फरिश्ते फरमाएंगे इसके आज गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं, इस वजह से हम घसीट कर जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। मेरे हुजूर दोबारा तराजू के पास लेके आएंगे, फरमाएंगे दोबारा इसकी नेकियां गुनाह का वजन किया जाए, उसकी नेकियों का गुनाहों का फिर वजन होगा। फिर हुजूर जेब से कागज निकालेंगे, एक नेकियों वाले पलड़े में रखेंगे, इस वजह से नेकियां ज्यादा गुनाह कम। अब वो शख्स बड़ा हैरान होगा, कहेगा आज तो वो दिन है कि माँ अपने बच्चे को भूल गई, आज वो दिन है बाप बेटे को भूल गया, आज भी आप मेरी मदद फरमा रहे हो, कौन हो, इतने हसीन चेहरे वाले कौन हो? तो मेरे हुजूर फरमाएंगे, मुस्कुरा कर फरमाएंगे उम्मती मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद मुस्तफा आया हूँ। सुभान अल्लाह। उस दिन हुजूर फरमाएंगे तुम्हें याद है तूने एक महफिल में बैठकर मुझ पर दरूद भेजा था। वो कहेगा मैंने तो जिंदगी गुजारी गुनाहों में, आका आपने मुझ पर इतना बड़ा करम फरमा दिया। हुजूर फरमाएंगे याद करो तू एक महफिल में आया था, वहाँ सब लोग दरूद पढ़ रहे थे, तूने भी वहाँ मोहब्बत से मुझ पर मिलकर दरूद और सलाम पढ़ा था। सुभान अल्लाह। आज वो दरूद तेरे काम आ गया है। माओ बहनों, यही तो खुशकिस्मत लोग हैं, दरूद पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, जिनको अल्लाह बगैर मांगे अता फरमा देता है। और दरूद और सलाम ये वो वजीफा है, जब नेकियां करती हैं दायां फरिश्ता लिखता है, जब गुनाह करती हैं बायां लिखता है। दरूद वो वजीफा है जब पढ़ोगी दोनों मसरूफ हो जाएंगे। दोनों कैसे मसरूफ हो जाएंगे? जो नेकियां लिखने वाला नेकियां लिखेगा और गुनाह लिखने वाला गुनाह मिटाना शुरू कर देगा। सुभान अल्लाह। ये वो वजीफा है। सब जानती हो अल्लामा इकबाल जो दुनिया में मशहूर नाम है, ये अल्लामा कैसे बना? उसने कहा कि मैंने कोई इतना इल्म तो हासिल नहीं किया, मुझे अल्लाह ने अल्लामा किस तरह बनाया। उसने अपना वाकया सुनाया। ये जो अल्लामा इकबाल अल्लामा, इतना बड़ा अल्लामा ऐसे नहीं बना, ये हुजूर की मोहब्बत में दरूद पढ़ता रहा। सुभान अल्लाह। उसका कहना है कि मैं किसी मुदरसे में नहीं गया, मैं कोई हाफिज नहीं हूँ, मैंने कोई अरबी नहीं पढ़ी, मैंने कोई कोरस नहीं किया, मैं दर्स निजामी नहीं किया, लेकिन हाँ एक दिन मैं एयरपोर्ट पे किसी दोस्त की मुलाकात को गया। मैंने वहाँ देखा कि एक अल्लाह वाला है और तस्बीह उठाकर कोई वजीफा कर रहा है। मैंने उसे कहा कि मुझे भी कुछ दे दो। उसने कहा दरूद और सलाम पढ़ते रहा करो। अल्लामा इकबाल कहता है जैसे मैं घर आया तो मैंने अपनी आदत बना ली, बस मैं हर वक्त दरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ता रहता। वक्त गुजरता गया, मुझे एक ख्वाब आया। उस ख्वाब के अंदर मैंने देखा कि एक गंदा सा नाला है, उसके अंदर काले रंग का पानी है, बहुत ही झाड़े अता के कांटे उसके अंदर हैं। जैसे मैं थोड़ा मैंने आगे सफर किया, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ वही नाला अब ब्लैक पानी सफेद हो चुका था। सुभान अल्लाह। वहां इतना सफेद पानी के अंदर से हीरे मोती भी साफ शफाफ नजर आ रहे थे। अब अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने किसी अल्लाह वाले से पूछा इस ख्वाब की ताबीर क्या है? उन्होंने कहा कि तूने मंजिल को पा लिया है, जब से तूने ये दरूद पाक पढ़ना शुरू किया है तेरे गुनाह नेकियों में बदल गए।
जो काला सा पानी नजर आया था ना, वो तेरे गंदे आमाल थे। अब जैसे तूने नेक तक सीधा रास्ता पे तूने चलना शुरू किया, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, दुरूद पाक की बरकत से तेरे सारे गुनाह नेकियों में बदल गए। अब अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैंने अपना दुरूद पाक का विर्द जारी रखा। जैसे मैंने 1 करोड़ मेरा दुरूद पूरा हुआ तो उधर से रात हुई तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। आप भी दीदार करना चाहती हैं तो माँ और बहनों ये दुरूद पाक का विर्द लाजमी करें। आपने कहा कि मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा, सुबहान अल्लाह। 1 करोड़ मेरा दुरूद पूरा हुआ, उधर से हुजूर दीदार करवा गए। दिन हुआ, मैंने पेंसिल उठाई, कॉपी उठाई और हुजूर के हुस्न को वह देख देख जैसे ख्वाब में देखा था वैसे ही मैंने आपकी मोहब्बत में नात लिखना शुरू कर दे। वो नात उसने ऐसी लिखी कि जिसके बारे उसने ऐसे अल्फाज लिखे कि उसने लिखकर किसी बहुत बड़े मुफ्तियों के पास भेजे कि ये मैंने जुमले हुजूर की मोहब्बत में लिखे हैं, ठीक है। उन बहुत बड़े बड़े मुफ्तियों ने कहा कि ये अल्फाज आए किधर से हैं। आज तक हमने किसी मुदरसे में ये अल्फाज नहीं सुने ना पढ़े, ना ये अल्फाज ताकि आखिर तूने ये आए किधर से हैं। अल्लामा इकबाल से पूछते हैं किस मुदरसे में पढ़ के आया है। उसने कहा मैं किसी मुदरसे में नहीं बढ़ा, मैं जमीन पर बैठकर बस अर्श पे जाने वाले पर दुरूद पढ़ता रहा। फिर वो अल्फाज मेरे मोती बन बन कर जहन में आते गए, दिल में उतरते गए, मैं ये अल्फाज लिखता गया। फिर उन मुफ्तियों ने, बहुत बड़े उलमा ने आपका नाम अल्लामा इकबाल रख दिया। पता चला ये अल्लामा कैसे बने मेरी माँ और बहनों। ये जो बिन पढ़े पढ़ जाता है, ये दरूद वजीफा ऐसा है, सुबहान अल्लाह। आप भी आदत बनाएं, यही 2 बातों का जिंदगी भर मामूल बना लें, इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत कामयाब हो जाएगी। वो बातें कौन सी हैं? चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लीजिए, इंशाअल्लाह आखिरत कब्र हशर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस चलते फिरते कुरान की तिलावत जारी रखें, दुरूद और सलाम पढ़ते रहा करें। क्योंकि माँ और बहनों, जो माँ चलती फिरती जो बहन की आदत होगी रब का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे भी आगे से हाफिज़े कुरान बनेंगे इंशाअल्लाह। जिस माँ की आदत है इंडिया की फिल्म, इंडिया के गाने देखते हुए बच्चे को वो दूध पिलाएगी ना, उसका बच्चा कभी भी वली नहीं बन सकता। माँ और बहनों, जब बीबी फातिमा तुज़हरा के नक्शे कदम पर चलने की आदत बनाएंगी, ये वो हस्ती हैं बच्चों को दूध पिलाती थी, रब का कुरान पढ़ते थे। ये वही हस्ती हैं चक्की चलाती थी, रब का कुरान पढ़ती थी। ये वही हस्ती हैं घर का काम कर रही थी, रब का कुरान पढ़ती थी। तो आगे से बेटे ने नेज़े की नोक पर रब का कुरान सुनाया, सुबहान अल्लाह। आज हम माँ और बहनों बच्चों की तरबियत किस तरह कर रही हैं। जितना भी कोशिश करती हैं सिर्फ दुनिया की तालीम हो, ये हो वो हो, लेकिन यहाँ की डिग्रियां ठीक है हासिल कर लोगे, वहाँ कब्र में ये सवाल नहीं होंगे कितनी डिग्रियां लेके आए हो, कौन सी तालीम तुम्हारे पास है। माओ बहनों अपने बच्चों को दीनी तालीम ज्यादा दिलवाएं, हाफिज़े कुरान बनाएं। अगर एक माँ की मेहनत से बच्चा डॉक्टर बन सकता है तो वो हाफिज़े कुरान क्यों नहीं बन सकता। हमारे ईमान इतने कमजोर क्यों हो चुके हैं। माओ बहनों, एक माँ की मेहनत से अगर बच्चा प्रोफेसर बन सकता है, वकील बन सकता है, तो नमाजी क्यों नहीं बन सकता है। पहले माँ को अपना अमल दुरुस्त करना होगा। आज हम चीख चीख कर बच्चे से बात करती हैं कि चीख के बात ना किया करो। तो मेरी बहनों, अगर बच्चे को थप्पड़ मार कर कहोगे किसी को थप्पड़ नहीं मारा करो, नहीं, ऐसे बच्चे नहीं समझेंगे। पहले माँ को अपना अमल दुरुस्त करना होगा। इसलिए हमेशा मेरी माँ बहनों अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करे। ये कयामत के दिन माँ बाप से सवाल किया जाएगा। बच्चे उज़र करेंगे, अल्लाह हम नमाज कैसे पढ़ते। हमारे माँ बाप ने ऐसे स्कूलों में डाल दिया था, ऐसे कॉलेजों में डाला जहाँ सिर्फ दुनिया की तालीम थी। ये तो हमें वहाँ सिखाई नहीं गया, वहाँ हमें कुछ नहीं सिखाया गया, हम क्या पढ़ते। तो वहाँ माँ बाप की पकड़ होगी। इसलिए आज मौका है, तौबा का दरवाजा खुला है। माओ बहनों, आइए रब की हाँ आज भी तौबा करके अपनी नमाज की पाबंदी करने की आदत बनाएं, कुरान पढ़ने की आदत बनाएं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान तौबा
کرتا ہے رب اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی قیمتی چیز انسان کی ملتی ہے انسان خوش ہوتا ہے۔ میرا رب جس طرح کے بکری کے تھنوں میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، آپ بھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں جاؤ۔ ایسی سچی توبہ کرو گے تو رب نے فرمایا میں گناہوں کو ایسے پاک کروں گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو کے آتا ہے۔ اگر ایک نالائق سا بچہ ہوتا ہے جیسے اسکول میں پڑھتا ہے، اور ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو فرسٹ پوزیشن لیتا ہے، ہر کلاس میں فرسٹ آتا ہے، اور یاد رکھنا وہ نالائق نے اگر جس دن اچھا سبق سنایا، اچھا سا کام لکھا، ٹیچر کو اس نالائق پر آج زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی۔ جو فرسٹ پوزیشن لیتا ہے چلو وہ تو ہر سال لیتا ہے، روزانہ سبق یاد کرتا ہے، آج اس نالائق نے بھی بہت اچھا کام لکھا تو ٹیچر بڑی خوش ہوگی۔ اسی طرح جب کوئی نالائق گناہگار بندہ رب کے ہاں بیٹھ کر سچی توبہ کر لیتا ہے تو رب فرماتا ہے میں گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ بہترین گناہگار وہ شخص ہے جو سچی توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اٹھنے سے پہلے اللہ ہماری بخشش فرمائے، اللہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔